Hello everyone. How are you feeling after long gap gathering in a classroom? That to post COVID, post lockdown. क्या कुछ नहीं फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है? थोड़ा थोड़ा? ओके. ठंड लग रही है? अच्छा. Okay. So good afternoon everyone. We welcome you to the first session of Ignite. I hope you are familiar with this Ignite at Insights platform. So this is our first Ignite session at our Delhi branch. And any such session for our new branch, this is our new branch. If you are familiar that earlier we were in some old building. So welcome for this first session. And it is a very proud moment that we are starting this session with someone who is a self-made personality. Okay, we'll discuss about him in this whole session. There is a very famous saying that if you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find an excuse, right? So कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह. So today we have Nilesh Keshri with us, who comes from very humble background of मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. मुंगेर कुछ हैं बिहार से यहाँ लोग? ओके. तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में. His initial schooling was from Munger itself, but later his family had to migrate to Noida, and where rest of his education was completed there. Destiny had some other plans for Nilesh. When he was in 11th standard, he was diagnosed with GHPC. This is acronym. The full form itself is I cannot pronounce, or it's very difficult. Just imagine the complexity, which affects the retina, and thus he started losing his vision when he was in class 11th. Class 10th he passed out in 2002. Society kept telling him that now you cannot do anything, you are dependent on your family, and for rest of your life, and not only that, they also told him that you are disabled. But Nilesh believes that only form of disability is a bad attitude. Thus, he maintained an extremely positive attitude towards life in spite of adverse circumstances. That is called a never dying spirit. After a gap of 5 years, he completed his education in class 10th in 2002. After a gap of 5 years, his education in his education, Nilesh gathered courage to complete his education further. He not only finished his class 12th in 2007, but he also went on and finished his graduation in Hindustani classical music, okay, and from Hindu College of Delhi. And during his graduation time, he was awarded by our former president, Dr. APJ Abdul Kalam, for his excellence in his curricular activities, okay. So post graduation, he ended up in a very good job as a bank PO. Still, his struggles were not over with respect to day-to-day life, day-to-day struggles. He faced many challenges there as well. But the challenges, they didn't kill his spirit. And he took up the challenge for preparing for civil services, which again was a bumpy ride. It was not easy. And today we have Nilesh Keshri, who stands, or for now he's sitting in front of us, as an IRS officer, having cleared the toughest exam of the country. I would like to share a story about Nilesh, which I got to know about him through his friend. In NADT, we have academies for different services. NADT is National Academy for Direct Access. Nilesh was very popular for his compassionate and empathetic attitude or his responses. Even at midnight, whenever people used to face any problem, they will give first call to Nilesh, including if I talk about a staff like housekeeping, cobbler, mess staff, office staff, hostel caretakers, they used to call him for help, and he in the midnight he will go. किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, he will go, he will help them. इनको हॉस्पिटल लेके जाते थे ये भाई साहब, और उनका मेडिकल रिकॉर्ड हॉस्पिटल वालों को दिखाना, उनसे आर्गुमेंट करना, उनको फैसिलिटीज दिलवाना, सारी सर्विसेज दिलवाना. सो ही यूज्ड टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ सोशल एक्टिविटीज. ही वाज पॉपुलर. इनफैक्ट ही वाज कोऑर्डिनेटर ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देयर. एंड नॉट ओनली दैट, आफ्टर NADT, during COVID times, Nilesh was very active
for the migrant workers for providing the rations, food, medicines, and whatever travel arrangements, not only in Delhi, throughout India, over phone, wherever it was possible, he went physically he went there and he helped them out. So that is his bent towards social activities as well. And this shows, this shows that how, what is the spirit of Nilesh, right? So Nilesh's story bears a testimony to the fact that who creates our destiny? We are the people who create our own destiny. So it is there is again a very famous say by Swami Vivekananda who rightly mentions that we are the masters of our destiny, right? So now I invite Mr. Nilesh Keshri to join on the stage for the conversation. So we formally welcome on the first Ignite session at Insights. Thank you. Please. Back in Nilesh. Pravesh, ये mic. आ जाएगा? Yes, sir. So how are you feeling? डरा कर क्या पूछ रहे हैं? First of all, thank you so much for this so humble introduction. शायद थोड़ा तो इस काबिल हूँ अगर मैं तो ईश्वर की कृपा है, बट आपने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के You deserve that and that's why मतलब वो सारी बातें और वो सारी चीजें हैं. So Nilesh ji, share with us your experience of how this journey of civil services preparation has been for you. ये जो जर्नी है मेरी, वो अगर शुरू से शुरू करें थोड़ा, तो कहीं ना कहीं मैंने कभी सोचा नहीं था, खास करके 10th के पहले तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं सिविल सर्विसेज कर सकता हूँ. क्योंकि अगर उस टाइम की मैं थोड़ा सा अपना जो एकेडमिक मेरा जो बैकग्राउंड था उसकी अगर बात करूं तो मैं बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट कह सकते हैं, मुझे कह सकते हैं क्या था ही. सो उस समय एकेडमिक की अगर मैं बात करूं, 10th की अगर जो एक बेंचमार्क होता है, दैट इज़ अ बेंचमार्क एंड उससे डिसाइड होता है नॉर्मली कि कहाँ क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे. तो at that time I was a student who secured a score of 50.8%. And I secured 33 marks in mathematics, 34 in social studies. So you can say, and that my score was brought to 50% due to Hindi, in which I secured 71. So it was like that. I was a student like that. फैमिली की भी बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कह सकते हैं अच्छा नहीं था. हम मतलब हैंड टू माउथ डेली इस टाइप का हमारा सिचुएशन था. एट वन टाइम माय फादर वाज अ सिक्योरिटी गार्ड एंड वो उस टाइम से आप उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया. माय फादर उन्होंने एक कुछ जो भी है थोड़ा कैपिटल जो भी इकट्ठा करके, और वहीं नोएडा में ही एक सेमी स्लम एरिया है, उसमें उन्होंने फिर एक जनरल स्टोर उन्होंने खोला. तो मेरे पापा मेरी मम्मी दोनों बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने उस चीज़ को, मतलब खास करके जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे उसको लेकर के दे स्ट्रगल अलॉट. तो मैं उनके साथ था. मैं भी वहीं पे शॉप में काम और वो सारी चीज़ें, उसके साथ ही पढ़ाई मेरी चलती थी. तो मतलब हम लोग का शेड्यूल ऐसा होता था कि सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते थे शॉप पे. मतलब सुबह उठ के शॉप खोलना, फिर उसका स्कूल, फिर स्कूल से आकर के फिर शॉप पे, इस तरीके से पूरा वो चलता फिरता रहता था. तो उस समय आप मतलब कुछ इस तरीके का सपना भी नहीं था, सही बताऊँ तो. हालांकि मेरी मम्मी भी एक टाइम पे उन्होंने बिहार PCS का उन्होंने एग्ज़ाम दिया था. शी रोट मीन्स ऑल्सो. तो उनकी इच्छा थी कि उनका कोई बच्चा अगर सिविल सर्विसेज के लिए
एक बार अटेम्प्ट करे एटलीस्ट। लेकिन कम से कम मेरे घर में मैं वो बच्चा तो नहीं था, हम 2 भाई हैं। तो मेरे भैया ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट थ्रू आउट, शुरू से वो बहुत ब्रिलियंट रहे हैं। और तो हम लोग का मन मतलब यही था कि वो कभी ट्राई करेंगे ज़रूर, जब क्योंकि वो ब्रिलियंट थे तो वो ट्राई करेंगे, क्योंकि वो कैपेसिटी उन्हीं के अंदर थी। मेरे मुझसे किसी को ना मुझे खुद से कोई उम्मीद थी, ना मेरे घर वालों को मुझसे कोई उम्मीद थी इस तरीके से कि हाँ, उनको पता था ठीक है लाइफ जी लेगा, लेकिन इस तरीके की कुछ उम्मीद नहीं थी कि हाँ सिविल सर्विसेज जा करके सिविल सर्विसेज क्रैक करेगा, और इस तरीके से कुछ सोच ही नहीं आती थी। जी। तो चूंकि परिस्थितियां भी ऐसी थी, हाँ, वो सोच कभी मतलब हाँ वो बहुत नेचुरल था कि हम कभी उस तरीके के उस दिशा में ही नहीं जाते थे। बट लेकिन मेरे भैया ने समझा परिवार की स्थिति को, और उन्होंने चूज़ किया कि नहीं आई गो फॉर सम प्रोफेशनल कोर्स, ताकि वो जल्दी इस्टेब्लिश कर सके अपने आप को। जी। तो उन्होंने सीए किया, और उनका भी वो मतलब वहाँ पे रहते हुए उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2nd स्कोर किया था सीए में। और मैं मतलब एक आयरनी देखिए कि जिस साल मैंने 10th किया और मेरे भैया ने 12th किया, मेरे भैया के मार्क्स से 92 पॉइंट समथिंग और मेरे थे 50.8 तो वो जैसे स्कूल में होता है ना कि बच्चे को बोला जाता है कि तुम्हें देख के लगता ही नहीं कि तुम शैलेश के भाई हो ये कंपैरिजन ये हमेशा रहता था। लेकिन हालांकि मेरे पेरेंट्स ने कभी वो कंपैरिजन नहीं किया, और मैं जैसा था मैं उनके लिए बहुत अच्छा था। तो बट उसके बाद फिर वही एक जो मेरी आइज़ का जो इशू आया, तो वो 10th के बाद जब मैं 11th में गया जी, तो उस समय वो इशू आया, तो मेरी पढ़ाई फिर वही रुक गई जी। अचानक से, एकदम से 11th में। तो कहीं ना कहीं उस समय एक कैसे है ना कि सोचने का मौका मिला मुझे अपने बारे में, कि एक कहते हैं एकदम जैसे सब कुछ रुक सा गया था। उससे पहले कभी जो सोचने का मौका नहीं मिला कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना है लाइफ में। ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, मतलब रोजी रोटी चली गई, कुछ नहीं है तो दुकान तो थी। तो वो, और दुकान किस चीज की थी? जो दुकान मेरी जनरल स्टोर थी, जो मतलब अपनी डे टू डे बेसिक नीड्स फुलफिल होती थी, और सब मतलब ठीक ठाक ये हो जाता। कोई ऐसा कुछ नहीं था कुछ सेविंग हो रही है या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ नहीं था। बट वही चीज़ थी कि सब चला था, मैं भी उसमें बहुत रमा हुआ था बिल्कुल कि मस्त ज़िंदगी चल रही है, क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है। तो बस वही जब रुकी पढ़ाई, और मतलब कुछ फिर ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें फिर ठहराव, फिर वो ट्रीटमेंट का दौर था, लगभग 2-3 साल कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट चला आइज़ का। और उस टाइम फैमिली की सिचुएशन देखी कि मतलब कहाँ से पता नहीं, पेरेंट्स भी, मैं अभी भी सोचता हूँ कि पता नहीं कहाँ से उन्होंने वो फाइनेंशियल वो इकट्ठा किया होगा उन्होंने, मतलब किस से कहाँ से दे टुक लोन और समथिंग, मतलब डोंट नो। मैं कभी सोचता हूँ तो मैं आई कुड नॉट इमेजिन कि वो कहाँ से उन्होंने अरेंज किया होगा, कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ा था कि एक एक चीज़ मेरी उस समय की मतलब ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ, फिर शंकर नेत्रालय चेन्नई में हुआ, तो वो सब चीज़ें मेरी समझ के बाहर हैं। लेकिन उस समय कम से कम मुझे आई रियलाइज्ड कि लाइफ इज़ नॉट ओनली कि आप मज़े कर रहे हो और आपकी ज़िंदगी चल रही है। यस, do you have a responsibility, and you will have to take that responsibility on your shoulders। वो लेना है उस समय। तो वो एहसास हुआ कहीं ना कहीं, फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई। फिर और एक दो चीज़ें जो एक फेज जो एकदम चेंज देखा मैंने सोसाइटी के, अपने रिलेटिव्स के जो बिहेवियर का जो चेंज था, वो जो अचानक से महसूस हो, तो इन सब चीज़ों ने मुझे झकझोरा कि ये क्या चल रहा है, क्यों जैसे रिलेटिव सोसाइटी, उन सब की जो बिहेवियर है, उन सब की बॉडी लैंग्वेज, वो लाचारी महसूस होने लगी खुद के लिए, बेचारापन महसूस होने लगा कि इसकी तो ज़िंदगी बेचारी की बर्बाद है, अब क्या करेगा, ठीक है दुकान में बैठेगा, यही कर सकते। जो पहले मैं सोचता था कि मैं कर लूँगा, अब मुझे वही लग रहा है कि मुझे ये लाचारी के कारण क्यों दिया जा रहा है मुझे ये। सही बात। तो वो जो लाचारी और बेचारगी, मैंने मतलब वही चीज़ था कि ये
ये चीज़ को चेंज करना है। जो मेरे पेरेंट्स की मजबूरी एक तरीके से मुझे दिखाई थी कि मेरे लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं वो चाह करके भी। मेरे भैया का स्ट्रगल दिख रहा था कि वो इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद वो मेरे लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो चीज़ को कुछ तो चेंज करना है उसको। हाँ, लेकिन ये नहीं, उस समय भी ये नहीं सोचा था कि सिविल सर्विसेज करना है। फिर लेकिन वही 12th मैंने सोचा कि कम से कम पढ़ाई शुरू करूँगा। पढ़ाई भी शुरू करना बहुत आसान नहीं था उस समय भी, उस ब्रेक के बाद, क्योंकि दो चीज़ें हो गई थी। एक तो वो ब्रेक आ गया था और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ थी कि मेरा मोड ऑफ जो स्टडी था दैट वाज चेंज्ड। पहले मैं देख के पढ़ता था किताबें, अब मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। तो मुझे बुक्स चाहिए थी जो विच वर इन फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट, या जो कोई मुझे पढ़ के सुना सके जी। तो वो दैट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो आपके लगे हुए हैं दुकान में, आप उनके पास टाइम नहीं है जी। आपको, मतलब एक रोजी रोटी और उस एक उधर स्ट्रगल वो तो चल ही रहा है कंटिन्यूअसली, और उसमें भी जो मेरे ट्रीटमेंट का खर्च, लोन, ये वो सब जो चल रहा था वो सब भी चल रहा है साथ में जी। और उसमें कोई स्पेयर हैंड आपके पास है नहीं। तो फिर उस समय फिर वही कि कैसे क्या करना है, और वो सोच, वो जो चीज़ें थी अरेंजमेंट, उसमें ही एक्चुअली में मेरे को 3 से 4 साल लगे कि हाउ टू हाँ। और वो ऐसे मतलब लोकेलिटी थी जहाँ पे कोई डिसेबिलिटी मीन्स मतलब फिनिशिंग ऑफ योर लाइफ, देयर इज नो वे आउट। कोई आपको ना तो वहाँ पे कोई बताने वाला है और ना कोई आपको ये समझाने वाला है कि आप आगे भी कुछ कर सकते हो, कोई मार्गदर्शन, कुछ भी नहीं। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2003 की, 2004-5 की। 3 में मुझे ये हुआ था, 4-5 की। तो उस समय ये गूगल और ये सब चीज़ें भी उतनी नहीं थी, और वैसे भी जिस बैकग्राउंड जो हाँ, स्टेट्स है उसमें तो बिल्कुल उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, जो मतलब था भी तो मेरे रीच के बाहर था। तो उस समय मेरी दुकान थी, मतलब मैं वो वही सिनेरियो बता रहा हूँ, मेरी दुकान थी, बगल में एक पीसीओ हुआ करता था। अच्छा। तो मैं वहाँ बैठ करके वो जो टेलीफोन डायरेक्टरी आती थी, हाँ, जी। डायरेक्टरी वो वैसा वाला तो मेरे उसका बीच में नहीं था। तो फ़ोन करके एक होता है था नंबर, जैसे अभी बहुत सारी ऑनलाइन टेली सर्च, हाँ, उस तरीके से। तो वही थी। तो मैं उनसे बोलता था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के लिए जो काम करें, उनका नंबर में निकालता था। अच्छा। उनसे बात करता था। वैसा करते 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 फिर इत्तेफाक से मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ दिल्ली में ही, आर.के. पुरम में, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स। अच्छा। तो उनके बारे में पता चला, फिर वहाँ मैं गया, उनसे बात हुई तो पता चला कि वहाँ किताबें मुझे रिकॉर्डेड मिल जाएंगी 12th के लिए जी। और वहाँ पे एक चीज़ जान के मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ कि जो लोग जो विजुअल इम्पेयर्ड हैं, दे कैन ऑल्सो लर्न कंप्यूटर। ओके, ठीक है। दैट वाज अ ब्रेक थ्रू इन माय लाइफ उस समय कि अब मुझे करना क्या है जी। तो वो एक कंप्यूटर वहाँ पे मैंने सीखना शुरू किया और वहाँ से बुक्स वगैरह मुझे मिली। तो एक कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, उस टाइप से फीलिंग आई। लेकिन वो समझ में आया कि वो तिनका नहीं था, पूरी नाव ही थी। तो नहीं, सही बात है, उस माहौल के लिए, उस टाइम के लिए। हाँ जी। मतलब बहुत मेरे लिए सरप्राइजिंग था, बट इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज that I could read and I could now start my studies once again. I can do something. True. तो फिर से वहीं पे वही I started my studies. I started learning my computer there, and I filled form with as a private candidate because there was no school who was allowing me to complete my studies in this way. हाँ, so I went to CBSE office and I somehow I got a very good connection there. That is a total different story, but that would have been a different story itself. Correct. That was a thing. So, but I succeeded and I appeared for the examination as a private candidate. As a blind candidate in UPSC, CBSE. Then you completed your 12th. Yeah, 12th. और फिर कॉलेज आया। फिर कॉलेज में भी आने के बाद मेरा वो भी एक
थोड़ा अलग ही कहानी है, बट वो म्यूजिक मैंने ग्रेजुएशन में सेलेक्ट काफी अलग सही रहा, यूनिक सही हाँ, है। वो उसके पीछे कहानी वही है कि वो जो पढ़ाई मेरी छूट गई थी ना, तो दैट टाइम आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक बिकॉज आई हैड नथिंग टू डू। एक मेरी दुकान थी और कुछ भी नहीं था, तो म्यूजिक वो भी बड़ी मुश्किल से मेरे गुरुजी जो हैं श्री शंभुनाथ, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मतलब वो उनका बड़प्पन था कि मुझे एक्सेप्ट किया कि मैं इसको सिखाऊंगा। अदरवाइज मैं बहुत लोगों के पास गया, सबने बोला कि इसको ये गाना वाना तो नहीं गा सकता है ये, बट वो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरे पे बहुत मेहनत की उन्होंने। मैं जो कुछ भी हूँ उनका बहुत बड़ा रोल है। तो उन्होंने वो सीखा और फिर उसके बाद 12th भी मैं एक सब्जेक्ट म्यूज़िक लिया, तो वही कि म्यूज़िक से फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वो भी घर वालों की का एक शर्त था कि तुम ग्रेजुएशन करोगे तो म्यूज़िक से करोगे, नहीं तो तुम इतना पढ़ नहीं पाओगे। अच्छा। वो भी एक डील थी मेरे और मेरे घर वालों के बीच में, क्योंकि उनको लगता था म्यूजिक में पढ़ना नहीं, लेकिन बाद में जाके पता चला कि वहाँ तो ज़्यादा ही पढ़ना है, अपने लिटरेचर्स हैं और बहुत सारे बुक्स हैं, उसकी अलग ही उसका वो था पूरा कोर्स। लेकिन वहाँ गया और फिर मतलब मुझे महसूस हुआ वहाँ जाके, अब ये सारा बैकग्राउंड था बट वो यूपीएससी के ऊपर, तो वो वहाँ जाने के बाद ना मुझे महसूस हुआ, जब उस माहौल में गया, फिर से मैं डीयू गया, वहाँ स्टूडेंट्स से मिला, वो लाइफ फिर से मेरी रिज्यूम हुई, आई रिज्यूम दैट लाइफ। और वहाँ पे भी जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार म्यूज़िक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मतलब बहुत पवित्र चीज़ है, मैं कहूँगा दैट इज़ अ वेरी डिवाइन थिंग, बट दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। वो मेरे को रियलाइज़ हो गया वहाँ पे, क्योंकि एक चीज़ क्या है ना कि ये जो बैकग्राउंड चल रहा था ना, एक डिवीज़न जो सोसाइटी का है ना, दो फाड़ जिसको कहते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से महसूस किया मैंने। जो हैव्स एंड हैव नॉट्स की जो हम बात करते हैं, वो मैंने महसूस किया, वो फील किया। इनफैक्ट यू हैव लिव्ड दैट। हाँ, एक्चुअली मतलब कि एक लाइफ थी जब मेरी विजन बिल्कुल नॉर्मल थी, और एक लाइफ थी जब मेरे पास मैं चाहता हूँ पढ़ूँ। पहले मैं नहीं चाहता था पढ़ूँ तो मेरे पास सब कुछ था, अब मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो डिफरेंस क्यों है, वो सब कुछ सोचने और उसको महसूस करने का जो मिला ना, तो वही मुझे लगा कि म्यूज़िक बहुत अच्छी चीज़ है, दैट इज़ फॉर मी। बट ये आगे ले जा करके अगर मैं कुछ जो महसूस किया है उसको मैं किस तरीके से यूटिलाइज करूँ, उसको हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट दैट, कि अगर कल को कोई इंसान अगर आता है तो उसको कम से कम ये चीज़ तो कुछ तो चेंज मैं कर सकूँ इस चीज़ में, अपने लेवल पे एटलीस्ट कुछ तो मैं, हाँ, कुछ तो प्रयास कर सकता हूँ मैं, कुछ तो मेरे एफर्ट्स होंगे। सो आई थॉट कि मैं क्या करूँ। फॉर्चुनेटली मेरे मामा जी, वो भी ही वाज आल्सो एन एस्पिरेंट, और वो भी एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए थे उस समय, अभी भी हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया उस समय। मैंने उनको बोला कि मामा जी, आई वांट टू एटलीस्ट अपीयर एटलीस्ट वंस, कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है। और कहीं ना कहीं मेरी मम्मी से जो पहले उनका था वो भी जो पीसीएस लेवल का, हाँ, तो वो मेरी मम्मी का जो सपना था कहूँगा, तो माँ का सपना था, वो भी एक चीज़ थी दिमाग में कहीं बैकग्राउंड पे। तो मैंने मामा जी को बोला कि मामा जी एटलीस्ट आई वांट टू गिव इट अ ट्राई। सो ही सेड ओके। तो आई स्टार्टेड गोइंग आफ्टर कॉलेज के बाद फिर मैं क्लास में थोड़ी देर की जा कर के बैठूँ, तो उन्होंने बोला कि जस्ट कम टू क्लास, सिट, लिसन द थिंग्स एंड सी कि तुम क्या करना आगे कर सकते हो उसमें। उन्होंने मुझे वही कहा कि तुम अगर करना चाहोगे तो तुम ज़रूर करोगे। वो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो उन्होंने बोला कि हाँ तुम कर सकते हो, ही बिलीव्ड इन मी। तो वो उन्होंने उस समय पे बहुत मार्गदर्शन दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें फिर स्टार्ट हुई। लेकिन कॉलेज जब ख़त्म हुआ उसके बाद दूसरी एक नई चुनौती सामने आ गई थी कि जो घर की फाइनेंशियल जो कंडीशन थी, मेरी शॉप बंद हो गई थी, क्योंकि मेरा जो कॉलेज शुरू हुआ था, मेरे पापा की तबीयत बहुत अच्छी नहीं रह रही थी, तो ही वॉज नॉट एबल टू रन द शॉप बाय हिज ओन। तो आई यूज़ टू रन, बट मेरा कॉलेज शुरू हो गया था तो हमें वो दुकान बंद करनी पड़ी। बट ये था कि मेरे भैया की अर्निंग थोड़ी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी इस लेवल पे वो नहीं था कि एक पूरी फैमिली को वो एक
अकेले अपने बूते पे करना थोड़ा उनके लिए भी जाती हो जाते। वो बहुत ज़्यादा खुश होते मैं अगर उनको बोलता कि भैया मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो वो बिल्कुल भी एक बार भी मना नहीं। लेकिन मैंने वही चीज़ महसूस की कि वो कब तक उनकी बात। और दूसरी की जो मैं ट्रीटमेंट वगैरह का जो डेट था पूरा, वो भी उसको भी पे कर रहे थे, पूरी फैमिली को भी चला रहे थे। तो वो चीज़ काफी बर्डन हो जाता है। हाँ, तो वो वही चीज़ मैंने महसूस की कि यार ऐसे तो काम नहीं चले, क्योंकि इसका पता नहीं है आपको एक अटेम्प्ट में सफलता मिलेगी, 2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में। तो फिर मैंने बोला कि यार इस तरीके से सस्टेनेबल नहीं हो सकता, मैं निश्चिंत होकर के पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। तो उस चीज़ को फिर देखते हुए फिर मैंने सोचा कि पहले एक जॉब लिया जाए। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज ओनली। और उस समय पे ये नया पैटर्न आया था IBPS and all PO। हाँ, तो सी सेट जो आया था, तो उसमें अच्छा। रीजनिंग और मैथ वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा। उसके बाद बैंक के एग्ज़ाम, उस टाइम IBPS नहीं था। अच्छा। उस टाइम वो हर एक बैंक का अलग अलग एग्ज़ाम होता था। तो उसको फिर वही एग्ज़ाम दिया। तो एक आध वो होता क्या था कि मैथ और रीजनिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या पेपर और पेन पे जब तक बनाएंगे नहीं तो तब तक वो आएगा नहीं, आता नहीं है दिमाग में कितना, वो भी बैंक PO लेवल का। जी। तो वो बड़ी समस्या हो जाती थी। मैं क्योंकि प्रिपेयर कर रहा था कहीं ना कहीं सिविल्स के लिए, GS फिर भी मैं पढ़ लेता था, करंट अफेयर्स वगैरह वो समझ में भी आने लगी थी मुझे तब तक चीज़ें। लेकिन फिर वही लगता था कि वो उसमें जो सेक्शनल कट ऑफ था वो मेरा कभी पास ही नहीं होता था। मैथ और रीजनिंग, कभी मैथ में रहना, कभी रीजनिंग, कभी दोनों में, जबकि उस समय बहुत ज़्यादा नहीं होता था फिर भी। तो बट बाय द लेकिन जो लिमिटेशंस थी उसके लिए वही बहुत टफ था। बहुत ज़्यादा वो हो जाता था, क्योंकि एक राइटर के साथ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो किसी को बोल के करवाना है। वो भी मतलब जब 12th का एग्जाम के बाद, वो हालांकि मुझे आदत हो गई थी, लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम कि आप डिक्टेशन दे रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन ये इस टाइप का जो एग्जाम है कि आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो किसी को बोल करके आप, वो बड़ा अजीब सा ही एक एक्सपीरियंस था। कभी कभी खुद का ही दिमाग नहीं चलता, हाँ। बोल के कैसे करवाएंगे, तो वो तो अपने आप में limitation। वो अलग ही एक संस्था ने कई 3-4 एग्जाम दिए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। जी। तो फिर थोड़ा सा पुश किया अपने आप को, थोड़ा सा सोचा कि नहीं यार स्ट्रैटेजी कुछ चेंज तो करनी पड़ेगी। तो फॉर्चुनेटली मतलब एक बार ऐसा हुआ कि जो मैथ और इसकी कट ऑफ निकल गई मेरी। मुझे ये पता था कि जिस दिन मेरी मैथ और रीजनिंग की कट ऑफ निकल गई उस दिन मैं सिक्योर तो अच्छा कर लूँगा, क्योंकि मेरे GS में काफ़ी अच्छा मैं स्कोर कर रहा था और इंग्लिश में भी मैं ठीक ठाक स्कोर कर ले रहा था। तो इन दोनों में मुझे पता था कि इसमें जिस दिन कट ऑफ निकल गया उस दिन मेरा एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल तो आ जाएगा। तो वही हुआ, तो कट ऑफ निकल गई, इंटरव्यू कॉल आ गया, फिर सिलेक्शन भी हो गया। तो वो था। लेकिन सिविल सर्विसेज करना है ये तो पता था। 2011 में वही जॉब मैंने लिया। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग इनिशियल डेज में बाहर थे दिल्ली के, तो इसीलिए थोड़ा सा वो नहीं कर पा रहा था उतने तरीके से। फिर मैंने कोशिश करके फिर दिल्ली में अपनी पोस्टिंग ली, और फिर 2013 से फिर से मैंने प्रॉपरली सिविल सर्विसेज का वही शुरू किया। 13 में पहला अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ था। अच्छा। उसके बाद करते इंटरव्यूज़ दिए 2-3-4। उसके बाद फिर 17 में मेरा फिर फाइनल फर्स्ट सिलेक्शन हुआ, और 18 में भी फिर सिलेक्शन हुआ, लेकिन 17 में ही मैंने फिर ज्वाइन कर लिया, रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन किया, इनकम टैक्स। काफी बम्पी रहा। तो जैसे आपने बताया ये विजुअल का प्रॉब्लम हुआ, विजन का प्रॉब्लम हुआ, तो देर आर मेनी स्टूडेंट्स, देर आर मेनी एस्पिरेंट्स जो हमारे साथ भी जुड़े हैं, और आपके नीलेश के टच में पूरे इंडिया से हर PH कैटेगरी का स्टूडेंट है जो जुड़ा है, कोई ना कोई एडवाइस लेता है, कुछ ना कुछ हेल्प मांगते हैं। तो जो ये प्रॉब्लम्स फेस होती है, शायद हम सेंसिटिव हो सकते हैं, एम्पैथाइज कर सकते हैं, बट हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता है। तो क्या सॉल्यूशन या क्या सजेशन होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो PH कैटेगरी से आते हैं? व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम? सबसे पहली चीज़ है ना, मतलब थोड़ा सा इसको सोसाइटी के एंगल से जो सोच है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके आना चाहूँगा। होता क्या है ना कि सोसाइटी में ना ओवरऑल लोगों की सोच, उनका जो इंटेंशन है ना वो बहुत अच्छा है, दे वांट टू हेल्प। बट प्रॉब्लम यही है कि हेल्प नहीं करनी है किसी की। होता क्या है ना कि जैसे जो 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 सो कॉल्ड डिसेबल्ड जो भी हैं, हम अदरवाइज जो भी हैं, तो
एक कमी की तरह देखा जाता है कि इनके शरीर में कुछ कमी है, कुछ क्षमताओं में कमी है। जी। बट एक्चुअली होता ये नहीं है, होता ये है कि क्षमताएं अलग होती हैं। जो हम जैसे डिफरेंटली एबल्ड की बात करते हैं, मैं हालांकि मैं उस शब्द से भी बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रहा, एवरीवन इज डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। कोई गाड़ी चला सकता है, कोई प्लेन नहीं चला सकता है, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, सब अपनी अपनी उनकी एबिलिटीज हैं सबकी। लेकिन क्या होता है, एक मेजोरिटी से थोड़ा अलग। जैसे मैं आप कोई कहेगा मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं सुन के पढ़ सकता हूँ। आप देख के पढ़ते हो, मैं सुन के पढ़ता हूँ, सिर्फ इतना अंतर है, ठीक है। आप सुन के लैपटॉप आप देख के लैपटॉप चलाते हैं, मैं सुन के लैपटॉप चलाता हूँ, उसमें क्या अंतर है? काम होने से मतलब है ना, देख के करो सुन के करो, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो यही ये जो सोच होती है ना अक्षमता वाली, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी ना, जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी डिसेबल्ड हैं, वो दिमाग में डाल दिया जाता है कि अक्षम हो और आपको मदद की ज़रूरत है हमेशा, एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ। तो वही सोच कहीं ना आ जाती है। और कैंडिडेट भी जब सिविल सर्विस, तो वो सोसाइटी से अलग तो है नहीं, सही बात। तो वो उस सोच के साथ ना ही आ जाते हैं, कई जीना शुरू कर देते हैं कि हाँ नहीं हम। बिल्कुल। और उसमें भी सोसाइटी क्या करती है, जैसे मैं अगर जैसे जो डिफरेंट एजुकेशन की बात करते हैं, बहुत सारे मेरे बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं पेरेंट्स को लेकर के, जो डिसेबल्ड बच्चों के पेरेंट्स, बहुत बहुत सारी की चीज़ें हैं। लेकिन उसमें भी कि सोसाइटी में क्या हो जाता है ना कि जो आइलैंड्स क्रिएट कर देते हैं। जैसे एक ब्लाइंड स्कूल है या ब्लाइंड हॉस्टल है, आप अगर वहाँ जाकर के देखोगे ना कभी, आपको ऐसा लगेगा कि सोसाइटी चारों तरफ से है और बीच में एक आइलैंड है, जिसका इंटरेक्शन सोसाइटी से नहीं है, सोसाइटी का इंटरेक्शन उनसे नहीं है। उनको देखते हैं तो बेचारे की वही नज़र से कि हाँ यार बेचारे अंधे हैं, ये कुछ नहीं कर नहीं सकते हैं, या फिर दूसरे जो भी डिसेबल्ड हैं दूसरे। तो वो जो सोच है ना, वो कहीं ना कहीं घर कर जाती है कि वी आर डिसेबल्ड। वो कहेंगे नहीं, लेकिन वो खुद भी कई बार महसूस करते हैं और सोसाइटी कहीं ना कहीं उनको महसूस करा देती है। तो वो जो है ना एक वो विशियस साइकिल, उसको तोड़ने की जरूरत है सबसे पहले। कई बार ज्यादा टूट जाता है, ऐसा भी होता है, लेकिन उस साइकिल को ना सही तरीके से तोड़ने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, जो भी कैंडिडेट अगर मुझे सुन रहे हैं जी, तो वो उस चीज को महसूस करना है कि मैं उस साइकिल में भी फंसा हुआ हूं। और नॉट ओनली द कैंडिडेट, उनके जो पेरेंट्स हैं, सोसाइटी जो भी है, जो पूरा इकोसिस्टम है उनके आसपास, उसको वो चीज समझने की जरूरत है कि इट इज नॉट लाइक दैट। आप हमेशा उसको इस तरीके से नहीं सोच सकते हो कि यार ये डिसेबल्ड है, कुछ कर नहीं पाएगा, ये वो फलाना ठिकाना जो भी है, ऐसा होता नहीं है कुछ। गिव देम रिसोर्सेज, दे विल डू, है ना। आप मेरे को आप बोलोगे कि यार तुमको कंप्यूटर दे दिया, तुम काम क्यों नहीं करते हो? आपने मॉनिटर दिया है मुझे स्पीकर चाहिए, ठीक है। आप मुझे वो चीज दो ना। अगर मैं आपको पेन नहीं दूंगा, मैं कहूंगा आप लिखो, तो आप लिख सकते हो। तो आप रिसोर्सेज दो ना, रिसोर्सेज दीजिए और फिर देखिए कि मैं काम कर सकता हूँ कि कर सकता हूँ। तो वही चीज़ है, रिसोर्सेज कई बार क्या होता है ना कि ना सिर्फ मिलते नहीं हैं, आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। और वो क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले आपके अंदर वो चीज़ आनी चाहिए कि मैं ये चीज़ करना है, और वो वही विशेष साइकिल को तोड़ के ही आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, तो मेरे पास बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं थी। मुझे बहुत सारी बुक्स कन्वर्ट करनी पड़ी ऑडियो फॉर्मेट में। एनसीईआरटी वगैरह तो फिर भी मिल जाती थी, लेकिन जैसे जो एडवांस बुक्स, जैसे फॉर एग्जांपल एम लक्ष्मीकांत, हर एस्पिरेंट जानता है एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के। आप दूसरे एस्पिरेंट क्या करेंगे कि वो जाएंगे, जाकर के उन्होंने बुक खरीदी और पढ़ना शुरू। मुझे एम लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट करने में 8 महीने का टाइम लगा, खरीदने के बाद। क्यों? क्योंकि मुझे उसको देना था रिकॉर्ड करने के लिए, और वो बुक पूरी रिकॉर्ड होकर के आने में मुझे 8 महीने का टाइम लगा। लेकिन अगर मैं वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता और वो पेशेंस नहीं रख पाता, तो फिर वो मैं कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाता उस चीज़ को। तो वो चीज़ है। दूसरी सबसे पहले वही एटीट्यूड की, सोसाइटी एज वेल एज, क्योंकि हम भी सोसाइटी के पार्ट बन जाते हैं और हम भी खुद में भी वो एहसास नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। दूसरी चीज़ वही कि जो चीज़ें होती भी हैं, मतलब कई बार कि बस तुम जिंदगी जी लो यार, तुम्हें सपने देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है।
तुम्हारी ज़िंदगी कट रही है, दैट इज़ फाइन फॉर यू। ये वाला एक चीज़ आती है, वो हम खुद भी अपने अंदर वो ले आते हैं, क्या ठीक है ज़िंदगी। जैसे मैं मतलब किसी को कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जब पिछली जॉब में था तो वहाँ पे कई बार क्या होता था कि शुरुआत में भाई लोगों को समझने में कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ, मैं मतलब, तो शुरुआत में मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं मिलता था, मेरे जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर वगैरह मुझे नहीं मिल पाए थे, तो मैं नहीं काम करता, तो मैं जाके अपने सीनियर से बोलता सर मुझे ये चीज़ दीजिए मैं ताकि मैं काम कर सकूँ। तो कुछ मेरे कोलीग्स तो बोलते रहे तुम बैठ के चिल करो ना, तुम काम करने की ज़रूरत, तुम्हें सैलरी मिल रही क्या ज़रूरत है काम करने की। बट दैट इज़ नॉट द थिंग। नौकरी मिल गई, आप किसी को डेस्क पे बिठा करके रखे हुए हो सिर्फ इस वजह से, तो वो मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि मैं क्यों ऐसा करूँ, अगर मुझे एक फर्म ने जॉब दिया है तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनको आउटपुट दूँ। तो हम कई बार जो कैंडिडेट्स होते हैं वो राइट्स की बात करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपकी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे घुस जाओ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको जो काम है वो काम आप करें। उसी तरीके सोसाइटी की भी है कि सिर्फ कोई दया करके किसी को नौकरी पे आप नहीं रख रहे हैं, या फिर दया करके सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से आप किसी को सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। आप उनके अंदर वो क्षमता देख रहे हैं, डिफरेंट क्षमता जो है उसको देख रहे हैं, और उसको उस कैपेबिलिटी को फिर आप उसके हिसाब से वो काम करके आउटपुट देगा। आउटपुट में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ तरीके में अंतर है। तो वो चीज़ को समझना कैंडिडेट को उस लेवल पे भी, एस्पिरेंट के लेवल पे, आफ्टर सिलेक्शन भी, ठीक है। और बाकी जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, दैट इज़ मतलब रियली वेरी बिग थिंग फॉर एक्चुअली में। लेकिन क्योंकि मैं जब अपनी प्रिपरेशन के टाइम से देखता हूँ और अभी के टाइम पे, तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, और दैट इज़ वेरी मतलब दैट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। बट वो उस समय नहीं थी तो दिक्कत होती थी, लेकिन अब आ गई हैं तो वो आप अगर कोई भी चाहे बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकता है, और बहुत कम टाइम में, जितना टाइम मुझे या मेरे जो हम लोग जिस समय प्रिपेयर करना शुरू किए थे, तो उस समय के हिसाब से अभी बहुत कम टाइम में फिर से कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है। तो बस इसको अपने दिमाग को माइंडसेट ठीक रखने की ज़रूरत है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का भी नाम बताएंगे जो शायद कोई सुन रहा हो उसको हेल्प हो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर मैं विजुअली इम्पेयरमेंट, क्योंकि विजुअल इम्पेयरमेंट और हेयरिंग इम्पेयरमेंट ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें स्टडी मटेरियल का बहुत ज़्यादा रोल होता है, डिफरेंट। क्योंकि जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप हैं वो लोग स्टडी मटेरियल नॉर्मल ही पढ़ते हैं, तो उनको उस तरीके का स्टडी मटेरियल में इनको इशू नहीं होता है। तो जैसे मैं जो हेयरिंग इम्पेयर्ड है उनके बारे में बहुत ज़्यादा तो मुझे जानकारी, क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा है उनके साथ, लेकिन जैसे जो विजुअल इम्पेयर्ड है, दिल्ली में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स है, सक्षम है, ठीक है, एक डेजी फोरम ऑफ इंडिया है, एक जो सुगम्य पुस्तकालय है। तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको बुक्स वगैरह काफ़ी अवेलेबल करवा देती हैं। और बाकी जो भी है, अब तो जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे जॉज मैं यूज़ करता हूँ, NVDA है, तो ये सब जो भी आपकी PDF फॉर्मेट में जो भी बुक्स हैं या सॉफ्ट कॉपी में जो भी बुक्स हैं उनको बहुत आसानी से पढ़ सकती हैं। तो वो तो जो करंट के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के अभी आजकल लिस्ट में अवेलेबल है। हाँ, सब कुछ है। लेकिन जो स्टैटिक बुक्स वगैरह भी हैं, तो वो ये खास करके सुगम्य पुस्तकालय जो है, वो सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ जाता है। और जितने भी बुक्स हैं, तो ऑलमोस्ट अब जो है अवेलेबिलिटी, वो सारे ही बुक्स की एक्सेसिबल फॉर्मेट में नॉर्मली अवेलेबल हैं। और अगर तब भी कुछ नहीं है तो फिर जैसे किंडल है, किंडल पे किताबें अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल अब रिसोर्सेज का, बुक्स का अब उतना फाइट नहीं रहा जितना आज से 4-5 साल पहले हुआ करता था। Thank you, Nilesh. And Nilesh is one of the Hindi medium topper of his time. So it is very good opportunity to tell that those who are preparing for from Hindi medium, they should not feel any kind of restriction कि नहीं मैं कर नहीं सकता या हो नहीं सकता हिंदी मीडियम वालों का. He is the example. So what suggestions do you have for Hindi medium aspirants? हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं ना, मतलब मुझे लगता है पहली चीज़ कि जो भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या रीजनल लैंग्वेज का जो एक फाइट, एक जो थोड़ा वो चलता है ना कहीं ना हम अपने आप को
जो कहते हैं इन्फीरियर महसूस करने लगे हैं। जी वो इन्फीरियरिटी का जो भाव है ना, जी उसको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ किसी ऐसा ऐसा कोई दिमाग में पूर्वाग्रह रखना ही नहीं है जी कि वहाँ कोई उस लेवल पे भी कोई पूर्वाग्रह है, ऐसा है नहीं। तो उस भाव को सबसे पहले ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपने अंदर अपना जो आत्मविश्वास है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, पहली चीज़। और दूसरी कि भाषा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इस परीक्षा के लिए। किस भाषा में आप लिख रहे हैं, किस भाषा में बोल रहे हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी बात कितनी आसानी तक सामने पहुंच रही है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ की जो भाषा है उसके प्रति बहुत ज़्यादा अपने मन में ना रिजिडिटी नहीं रखनी है। भाषा का जो स्वरूप होता है, जैसे हिंदी के बारे में तो मैं जहाँ तक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन जो हिंदी है बहुत सरल और बहुत ही सटीक भाषा है। उसको हम ज़बरदस्ती का क्लिष्ट बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्ती का उसको परेशान कर देते हैं। जैसे मैं मौलाना आज़ाद ने संविधान सभा में जो कहा था, वो मुझे हमेशा भाषा के बारे में जब भी हिंदी मीडियम और इस टाइप का बात हो, उनकी बात याद आती है कि भाषा जो होती है ना वो नदी की तरह होती है। वो अपना दायरा, अपना किनारा वो खुद तय करती है। आप ज़बरदस्ती उसको बांधने की कोशिश मत करो। अगर आप उसको बांधने की कोशिश करोगे ना तो वो विचलित हो जाएगी, वो अपना स्वरूप ख़त्म कर देगी। तो हम जैसे क्या कहते हैं ना, सोचते हैं कि कई बार हिंदी भाषा जो जो बच्चे हैं हम लोग हिंदी मीडियम के, कि जो तत्समनिष्ठ हिंदी होती है ना वो अच्छी हिंदी होती है। इस परीक्षा के लिए शायद वो उतनी अच्छी हिंदी नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको भी तो समझना है ना आपकी बातों को, और उसको हम वो पूरा एटीट्यूड एक बन जाता है हमारा, अच्छी हिंदी अच्छी हिंदी अच्छी हिंदी। हिंदी हमें अपने आप में ही अच्छी है, उसको और अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती का प्रयास नहीं करना है उसके लिए। तो वो चीज़ एक मुझे लगती है कि उस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा कि जो 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 इन्फीरियरिटी है जो हमारे अंदर, उसके कारण क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा विचलित रहते हैं। ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने लगते हैं कई बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। तो उसको भी सीमित करने की ज़रूरत है। किसी भी मतलब मीडियम को छोड़ दीजिए, आप किसी भी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, आप उनसे पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है ना उसको बहुत सीमित रखा है। उन्होंने एक जो पुस्तक है, एक किताब है, उसको भले ही 10 बार पढ़ा हो, लेकिन 10 किताबें चुन चुन करके उन्होंने नहीं पढ़ा है। हम कहीं ना उस दुष्चक्र में फंस जाते हैं फिर से कि हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। ऐसा लगता है जैसे कि अगर किसी ने पूछ लिया और हम उसका जवाब नहीं दे पाए तो फिर हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट होने पे लानत है। ऐसा घरों में और रिलेटिव्स के साथ अक्सर होता और है। उस चक्कर में हम फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो मांग है, जो सिविल सर्विसेज परीक्षा की, उसको उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। वो जबरदस्ती के रोचक तथ्य जानने की क्या जरूरत है। जी जी। तो अपने एफर्ट को बहुत ज़्यादा चैनलाइज करने की ज़रूरत है, बहुत केंद्रित करने की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से फिर अपनी तैयारी को हमेशा चेक करते हुए ही उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है। किसी तरीके की कोई खामखा का प्रेशर नहीं लेना है, खामखा का दबाव नहीं लेना कि यार देखो इंग्लिश हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मेरा क्या होगा, और उसी चक्कर में हम ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करने लगते हैं। और फिर हम वो एक बार मुझे याद नहीं है कि कहाँ पे मैंने ये सुना था कि हम एक बार कोई धावक तो बहुत तेज दौड़ता था, तो वो दौड़ते दौड़ते फिनिशिंग लाइन से आगे पहुंच गया। अच्छा। लेकिन फिनिशिंग लाइन पे जो पहुंचे थे वो दौड़ते दौड़ते आगे पहुंच जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको फिनिशिंग लाइन पे आकर के खत्म, और उतना ही दौड़ना है जितना फिनिशिंग लाइन तक के लिए जरूरी है। जबरदस्ती का एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। तो और मतलब ऐसा हम कहते भी रहते हैं स्टूडेंट्स को कि मतलब आपको जो है मटेरियल कलेक्टर नहीं बनना है। हाँ, और एक्चुअली ना ही जो है हर ज्ञान को इकट्ठा जो एक शब्द है ना, सर्वज्ञ नहीं बनना है। आप एक एस्पिरेंट हैं, एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और उसकी मांग, वो ये परीक्षा का पैटर्न क्यों है ऐसा,
क्योंकि वो आपकी मैच्योरिटी को, आपकी परिपक्वता को देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि हम इतनी जिम्मेवारी भरा एक पद उनको देना चाहते हैं, तो वो उसके योग्य हैं कि नहीं। उनको आपके ज्ञान की परीक्षा थोड़ी करनी है। अगर वैसे करने हैं तो कितने ही कैंडिडेट्स हैं पीएचडी पता नहीं क्या क्या करके, मैं बीए पास हूँ वो भी म्यूजिक में, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो उसके अगर इसी चीज से वो समझ पाए कि क्या मांग हो सकती है, तो उस मांग को समझें और अपने आप को अलग ना समझें। आप उतने ही रिसोर्सेज हैं आपके पास, उतनी ही चीजें हैं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। इस That feeling we have to come out of. बिल्कुल बिल्कुल। Okay, we have a question, Nilesh ji, from Vishal Tyagi from Odisha. He is a Hindi medium student. इनका ये कहना है कि सर there is always added advantage for English aspirants for mains answer writing practice because they get very good content from English newspapers as well. So, what are your suggestions to a Hindi medium aspirant? How they can enrich his or her content without English newspapers? पता है मैं इस जंग में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मतलब सही बताऊँ, अगर मैं बहुत जो ये डिवीजन है ना, वो बहुत फेक डिवीजन है। हिंदी मीडियम का न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, ये कहीं ना कहीं हमारी उसी डर को दिखाता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम में ही हुई है। मैं मतलब कह सकता हूँ जो नर्सरी होती है वहाँ से लेकर के ग्रेजुएशन तक मेरी पूरी पढ़ाई मैंने हिंदी में ही की है। इंग्लिश में मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है। उसके पीछे कारण क्या है? एक मेरी मजबूरी कहें या फिर जो फोर्सफुली कंपल्शन कहें, करेक्ट, कि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी तो उस समय जो हिंदी का जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता था, तो बाकी बुक्स मुझे रिकॉर्डेड मिल जाती थी, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए क्या होता था कि उतना टाइम नहीं होता है कि आप 3 महीने के बाद आपको बुक मिल रही है और आप उसको पढ़ रहे हैं। आपको डेली उसको पढ़ना होता है। तो उस टाइम यूट्यूब और ये सब भी बहुत सारे चैनल्स नहीं थे। तो क्या होता था कि अब क्या करें, इंग्लिश में तो मटेरियल अवेलेबल है, हिंदी में भी मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता था तो वो हिंदी नहीं पढ़ सकता था। उस समय उतना डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन इंग्लिश वो पढ़ सकता था। तो मेरी पढ़ाई फिर मुझे इस पे इंग्लिश पे करंट अफेयर्स के लिए मेरे को स्विच करना पड़ा। तो उस समय मेरे मन में भी यही भय था कि यार मैं इंग्लिश कैसे पढूं, मेरे को समझ में नहीं आती जी। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना, तो मैंने बोला यार ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक जो कहते हैं ना इंग्लिश में एक फ्रेज है ग्लास सीलिंग, वो तोड़ने वाली बात है। वो तोड़ देंगे ना आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई बैरियर है ही नहीं, बिल्कुल एक्चुअली में नहीं है। आप उसको जितनी आसानी से आप इंग्लिश पढ़ेंगे ना, आपको फिर अपने आप में वो कॉन्फिडेंस फिर से आएगा। जो विशाल जी हैं शायद ना, विशाल जी, उनको मैं वही कहूँगा कि इस सोच से पहले बाहर निकलिए कि इंग्लिश में न्यूज़पेपर है, हिंदी में नहीं है। अगर इंग्लिश में तो हम इंग्लिश में ही पढ़ लेंगे यार, कंटेंट चाहिए ना। आप मैं मतलब दावे से कह सकता हूँ कि चाहे किसी भी ग्रामीण पृष्ठभूमि का भी जिसको हम तथाकथित रूप से हम कहते हैं कि उसको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, आप उसको 1 महीना इंग्लिश का न्यूज़पेपर दे दीजिए। वो ठीक है, टर्म्स नहीं समझ में आएंगे उसको, लेकिन अगर आप उसको समरी जो सारांश होता है ना, वो आप कहेंगे तो उसको 2 बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा। स्टोरी समझ में आ जाएगी। उसी स्टोरी की जरूरत है, सिर्फ यूपीएससी में उसी स्टोरी की जरूरत है। आपको बस जिस समझ में आ रहा है कहानी का, बात खत्म। आपको डेली वो नहीं डेली आंकड़े लिखने हैं कि भाई ये हुआ, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ, नहीं करना है वो सब कुछ। आपको कहानी समझ में आनी चाहिए मोटी मोटी, और कहानी को वहां पे जाकर के आपको प्रेजेंट करने की कुवत होनी चाहिए। बस खत्म, आपका काम खत्म। जबरदस्ती की इस लड़ाई में नहीं उलझना है कि इंग्लिश मीडियम में अच्छा मटेरियल है, हिंदी मीडियम में अच्छा मटेरियल। जहाँ पे भी मटेरियल अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है, आप उस कंटेंट को उठाइए, पढ़िए। एक बार नहीं समझ में आएगा ना, 2 बार। आपके ऊपर आपकी जो कैपेसिटी, आपकी जो क्षमता है ना, उससे बाहर नहीं है वो चीज़ है। और अब ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो मैं विशाल जी को यही सजेस्ट करूँगा, जो भी कैंडिडेट अगर उनकी यही समस्या है, तो अगर मुझे बड़ा भाई या जो एक सो कॉल्ड टॉपर जो भी कहना चाहें वो कहें, तो इतना भरोसा करें कि अगर आप एक बार कोशिश तो कीजिए, आपको नहीं दिक्कत आएगी। 1 बार दिक्कत आएगी, 2 बार, तीसरी बार में आपको वो चीज़ समझ में आएगी ही आएगी। तो इस धोखे से ऊपर उठिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस डर से ऊपर उठिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत सही बात कही आपने।
और बेसिकली ये आर्टिफिशियल बैरियर जो है उसको हटाने की जरूरत एक्चुअली में So, दिमाग में है सर। सिर्फ दिमाग में. So it is like a fear. Fear is not real. It is just creation of our mind. बिल्कुल बिल्कुल। Okay, Nilesh ji. So you have qualified this exam along with working as a bank PO. So what suggestions do you have for time management for working professionals? Because I दिन आपके स्टूडेंट्स आते हैं, सर हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये टाइम कैसे बैलेंस किया है? सो आपसे बेहतर कौन? सबसे पहली चीज कि दिमाग में ना एक चीज बहुत साफ रहनी चाहिए कि मुझे ये एग्जाम पास करना है। ये एक लाइन को ना, मतलब जहाँ पे भी आप दिमाग के जिस भी इलाके में है उसको अच्छे से ठोक पीट के उसको सेट कर लें। ठीक है, पहला काम ये है। उसके बाद ना चीज़ें आसान हो जाएंगी। अपने आप को भाई जो 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 थीम है आज हमारे टॉक का कि लाइफ बियॉन्ड एक्सक्यूजेज, ये एक्सक्यूजेस ख़त्म करनी पड़ेगी ज़िंदगी से कि हम वर्किंग हैं, हम क्या करें। ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं किसी भी कोई भी एस्पिरेंट हूँ, अगर मैं डेली एग्ज़ाम के टाइम को छोड़ दें, अगर जो डेली अदरवाइज पढ़ाई करते हैं तो कितने घंटे पढ़ लेते हैं दिन में? इफेक्टिव पढ़ाई 5 घंटे 6 घंटे, इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकता ना कोई इफेक्टिवली। मैक्सिमम हुआ 7 to 8 hours। मतलब किताब खोल के बैठना पढ़ाई नहीं है ना। जी जी, है ना। या तो अगर हम इफेक्टिवली बात करें तो 6 घंटा 7 घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, जो दिमाग में जाना बंद हो जाता है उसके बाद। तो अगर मैं जैसे अपनी बात करूँ, मेरा क्या रूटीन होता था कि मैं सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे निकल जाता था ऑफिस के लिए, और शाम को मैं करीब 8 साढ़े 8 तक मैं वापस आ पाता था। तो ये इतना टाइम, उसके अलावा मेरे पास टाइम रहता था 24 घंटे के। ये कितने घंटे हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 11 घंटे निकल गए ऑफिस का। तो ये इस 11 घंटे में भी कुछ कैच है, उसको मैं बाद में समझाता हूँ। तो वो 11 घंटे निकल गए, तो बचा हमारे पास आपका कितने घंटे, 13 घंटे। 13 घंटे बच गए, इसमें 6 घंटा निकाल दीजिए सोने का। ठीक है, तो बचे 7 घंटे। अब उस 7 घंटे में 1 घंटा बाकी इधर उधर की चीज़ें, 6 घंटे आपके पास बच रहे हैं इफेक्टिवली, मोटा 6 hours effective। 6 घंटे बच रहे हैं आपके पास। उस 6 घंटे को पूरी तरह निकालिए ना। आप बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है आपको? अगर आपको सिविल सर्विसेज करना ही करना है तब की बात मैं बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें करनी है तो वो दुनिया पड़ी हुई है, तफरीह मारना है तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर रिग्रेट मत कीजिएगा कि मेरा हुआ नहीं। तो अगर वो रिग्रेट नहीं करना है तो मैं वही करता था कि मैं 8 सवा 8 तक जैसे मैं घर पहुंचा, उसके बाद मैं कोशिश करता था 8:30 पौने 9 तक मैं लाइब्रेरी पहुंच जाऊँ। उसके बाद जितनी देर भी हो सके 12 साढ़े 12 1 कभी मैं लाइब्रेरी में बैठता था। मेरे लाइब्रेरी वाले को ही पता था कि ये ऐसे ही आएगा, तो मतलब दोस्ती हो ही जाती है। उसके बाद फिर वहाँ से गया, फिर अगर 12 बजे, वो 6 घंटे की नींद लेता था नॉर्मली, तो 6 साढ़े 6 उठ करके 7 साढ़े 7 तक तैयार होकर के वापस लाइब्रेरी चला गया। ठीक है, 7:30 बजे फिर 1 घंटा 1 आध घंटा जो भी है पढ़ाई की। उसके बाद वही थोड़ा चाय वाय नाश्ता वाश्ता मेट्रो स्टेशन के पास ही था, वहीं GTV नगर में। अच्छा। वहीं किया, और उसके बाद 9 सवा 9 तक हम ऑफिस के लिए रवाना हो गए। फिर वही शाम को 7:30 बजे तक ऑफिस। फिर उसके बाद फिर से, अब वो जो कैच की बात की थी मैंने, वहाँ पे मैं क्या करता था कि टाइम क्योंकि कम था तो, और मेरे लिए आसान क्या होता था, मुझे सुन के ही पढ़ाई करनी होती थी। लेकिन ये कोई भी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं जो अपना जो डेली जो करंट अफेयर्स की बात है, जो न्यूज़ सुनने की बात है, वो मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे करता था। ठीक है, कि मोबाइल में अपना वो रख लिया न्यूज़, जो जैसे राज्यसभा टीवी का है या जो भी डाउनलोड करके उसको रख लिया, और उसके बाद फिर उसको सुनते हुए गया। 40-45 मिनट 1 घंटा जो भी है, कम से कम 2 से 3 प्रोग्राम में निपटा दें, क्योंकि मैं वैसे भी पढ़ाई भी स्पीड मेरी तेज हो गई थी, मैं 2x पे ही सुनता हूँ। ठीक है, तो वो उधर हो गया। फिर वापसी में आते टाइम भी उतना ही टाइम मुझे मिल गया। तो मुझे 2 घंटे जो करंट अफेयर्स के लिए चाहिए थे डेली के, वो तो मेरे ट्रैवलिंग में ही निकल गया। बाकी बचा मेरा 6 घंटा, उसमें से 4 घंटे भी मैं इफेक्टिवली निकाल लूँ तो 2 घंटे मेरा GS स्टैटिक के लिए हो गया, 2 घंटे मेरा अगर मैं चाहूँ तो ऑप्शनल के लिए हो गया।
इससे ज़्यादा मुझे लगा नहीं कि मुझे कभी ज़रूरत पड़ी। बाकी उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम का टाइम होता था उस समय थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती थी, छुट्टी लेना पड़ता था कई बार। तो छुट्टी लेकर के 15-20 दिन जो भी है छुट्टी, जितना भी आप मैनेज कर सकते हैं वो छुट्टी लेकर के लॉस ऑफ पे ही लेता था। ठीक है कि उतनी छुट्टियां मिल नहीं सकती हैं हर साल। आप मैं मतलब कंटिन्यूसली 13 से 17 तक मैं कंटिन्यूसली हर बार मेंस पीटी इंटरव्यू ये दे रहा था, तो हमेशा इतनी छुट्टियां साल भर में आपको मिलेंगी नहीं, तो आपको लीव विदाउट पे जाना। लेकिन ये सब चीज़ें, ये एक तरीके की आप कीमत है जो चुका रहे हैं, आपका अपने सपने के लिए वो कीमत है जो चुका रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में ना तो कोई ये किसी तरीके का संकोच करना चाहिए, ठीक है, और ना ही अपने आप पे कोई ये करना चाहिए कि यार मैं इतना कैसे करूँगा। ये कोई भी कर सकता है। बस सबसे पहली चीज़ कि आपके दिमाग में वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। जैसा आज का थीम है लाइफ बियॉन्ड एक्सक्यूजेस, तो अल्टीमेटली एक्सक्यूज नहीं देना है, जो भी टाइम मिले चुराना है और पढ़ाई करते रहना है। बिल्कुल, वो मैनेज आपको करना है, आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे करते हैं। जी, आपने अपनी स्टोरी में भी बताया, तो हाउ डिड यू मैनेज द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? वही कि जो बैंक की मेरी जॉब थी वो चीज़ थी, मुझे वो मतलब वो सबसे बड़ा सपोर्ट था मेरा। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं नहीं कर पाता, ये सच्चाई है। या फिर मुझे कुछ और तरीके अपनाने पड़ते हैं, मतलब ये तो नहीं कहूँगा नहीं कर पाता, लेकिन उससे मुझे बहुत आसानी मिली जी। और उसमें समय जाता था, बहुत समय जाता था, लेकिन वही था कि मुझे करना है, एट एनी कॉस्ट करना है, तो वो चीज़ सामने थी। तो वैसे ही मैंने किया। अदरवाइज़ मैं देखता हूँ दूसरे भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं लोगों को जानता हूँ जो ट्यूशन पढ़ा करके उसको मैनेज करते हैं। घर में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आम बात है। और ख़ास करके इस टाइम पे जब आपको नहीं पता, एक तरीके का ना एक ऐसा सफ़र है जिस नहीं पता कि कब जाके ख़त्म होगा, तो उस समय बहुत ये आम बात है। तो ये सिर्फ अपने आप को ना तैयार रखना है उस चीज़ के लिए। कोई भी दिक्कत आएगी, दिक्कत बेसिकली आएगी नहीं, ये मेरा मानना है कि कोई प्रॉब्लम लाइफ में होती नहीं है। सिचुएशंस होती हैं जिसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आते हैं जो आपके प्रायोरिटी के नहीं होते हैं, आपके पसंद के नहीं होते हैं। तो हम दो ही ऑप्शन हमारे पास तब होते हैं, या तो हम रोते रहें कि भाई मेरे पास वो ऑप्शन क्यों नहीं है, ठीक है, कि मेरे पास बहुत अच्छा पैसा होता, मैं आराम से बैठ करके तैयारी करता, या फिर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चुने और आगे बढ़े। तो बस यही एक वो भी मैनेज हो ही जाता है आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत होती ही नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम 2 अटेम्प्ट ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन अगर करना है तो आपकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जो बेस्ट है वो आप चुन करके आगे बढ़ते रहिए और वो ज़रूर होगा। ऑप्शन हो सकता है या तो हम काम करें, ट्यूशंस पढ़ाएं, कुछ भी कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ाएं। बहुत सारे बच्चे देखता हूँ लाइब्रेरी में जॉब करते हैं। बहुत ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो मुखर्जी नगर में जो सुबह के टाइम नाश्ते की रेहड़ी लगाते हैं। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो दिन में प्रिपरेशन करते हैं, सुबह के 2-3 घंटे वहाँ पे लगा करके, और उसके बाद वो उसके बाद में पढ़ाई करते हैं। होना नहीं होना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट they are managing it and they are managing it very well. बहुत ही काफी इंसाइट्स दिए आपने। मैं उसी को नहीं प्रोसेस कर पा रहा हूँ। So now Nilesh, since you are already a civil servant, you are in the field, you are seeing the things from inside, you have experienced this transition from being a civil services aspirant to being a civil servant right now. So what has changed? And if I ask, what is your experience as a civil servant? चेंज की जहाँ तक बात है, सबसे पहली चेंज तो आ जाती है कि आपको जिम्मेवारी का एहसास होता है कि आप बहुत तरीके की जिम्मेवारियाँ, जो ऑफिशियल जिम्मेवारी है वो तो अलग है, उसके अलावा सोसाइटी में भी आप एक आदर्श की तरह बन जाते हैं, एक आइडल की तरह बन जाते हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपको, तो उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना ये बहुत मतलब जिम्मेवारी का काम है, बहुत टफ काम है। और कई बार उन एक्सपेक्टेशन को पूरा ना करना भी बहुत जिम्मेवारी का काम है। वो ऐसी एक्सपेक्टेशन विच आर नॉट लेजिटिमेट। ओके, कई बार आपके पास ऐसे रिक्वेस्ट आएंगे विच आर नॉट लेजिटिमेट, लेकिन आपको मना करना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत क्लोज रिलेटिव, बहुत क्लोज फ्रेंड के पास से आएंगे, तो वहाँ पे जो अगर आप सिविल सर्वेंट नहीं होते
तो शायद आप उसकी मदद करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे आप मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपके रिलेटिव हैं, लेकिन आपकी जिम्मेवारी पूरी सोसाइटी की तरफ है, पूरी सोसाइटी आपकी तरफ देख रही है। तो आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं करना है कि भाई जिसको कल को कोई भी गलत करने के लिए आपको कोट कर सके कि फलाने ने भी तो ऐसा किया था। तो वो सब चीज़ें आपको दिमाग में हमेशा हर कदम में मतलब बहुत ही कह सकते हैं कॉन्शियस हो गया। अभी हो गया हूँ। पहले मैं बहुत बिंदास टाइप का लड़का हुआ करता। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरे आप दोस्तों से पूछेंगे, मैं मतलब ऐसे लोगों में था कि जो पेड़ पर चढ़ के जोर से चिल्ला सकता है पूरी भीड़ के बीच में, मतलब शरारती टाइप। हाँ। लेकिन अब वो सब चीज़ें मैं शायद नहीं करूँगा क्योंकि एक 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 जो जिम्मेवारी है वो है सामने, ये पर्सनल लेवल पे। बाकी प्रोफेशनल लेवल पे बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं जिसको आपको एट एनी कॉस्ट करना है, क्योंकि पता है कि ये पूरी की पूरी एक जो पूरा सिस्टम है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत की रोल आप निभा रहे हैं। और उसके साथ न सिर्फ आपकी खुद की जॉब का बात है, वो तो बहुत सेकेंडरी बात है, लेकिन जैसे मैं रेवेन्यू सर्विस में हूँ, तो हमारी सर्विस का जो ध्येय वाक्य है वो है कोश मूल्य दंड, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन इज रेवेन्यू। Revenue, true. This is the only department which earns for the government. Rest of the departments दे एक्सपेंड। they expend. ठीक है, तो हम कमाऊ पूत हैं। तो घर के तो ये जिम्मेवारी है कि आप अगर आप नहीं कमाएंगे तो बाकी चीज़ें चलेंगी कैसे। तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, वो चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं, उसका तरीका अलग है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप काम नहीं कर सकते हैं इफेक्टिवली। आप डेली रूटीन का काम कर देंगे, आपको ये पेपर साइन करना है, वो करना है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो इफेक्टिवनेस है वो चीज़ नहीं आ सकती है जब तक आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे नहीं जी। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लेवल पे, चाहे पर्सनल लेवल पे चाहे प्रोफेशनल लेवल पे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आप वही शख्स होते हैं, कई बार आपका मन करता है कि मैं वैसा ही बनूं जैसा था जी, लेकिन कई बार वैसा नहीं होता है। खुल नहीं पाते हैं। और मतलब जैसा आपने शुरू से बताया, सोसाइटी का क्या एटीट्यूड चेंज रहा है सिविल एस्पिरेंट से लेके सर्वेंट होने तक? मतलब सही बताऊं तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मतलब कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही कर दिया। तो वो मतलब बहुत अजीब भी लगता है कई बार सोसाइटी की तरफ से। और ख़ास करके जैसे मैं अपनी अपनी पर्सनल इसकी बात करूं तो जैसे लोग थे जो मतलब लाचार बेबस वो उस तरीके की जिनकी फीलिंग्स थी, वो अब मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं मदद के लिए या इस तरीके की। वो एक अलग तरीके की फीलिंग है। वो मतलब शायद ऐसा महसूस होता है कि हाँ, जो सोचा था कभी करने का वो शायद कुछ हद तक कर लिया है। उसी मतलब कहीं ना कहीं एक अकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आती है, प्राउड वाली फीलिंग आती है कि चलो मैं भी किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। प्राउड तो नहीं कहूँगा मैं, बट एटलीस्ट एक सेटिस्फैक्शन होता है। सेटिस्फैक्शन। एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं एक सिविल सर्वेंट होने के नाते मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। अब कहीं ना कहीं वो एक रीच हो गई है मेरी कि अगर जेन्युइनली किसी को कोई इशू है और नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आई कैन आस्क फॉर समथिंग फ्रॉम एनीवन। जी जी। तो वो एक चीज़ है जो महसूस होती है। और फिर वही है कि अल्टीमेटली वो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो रीच वो जो अस्त्र है उसका सही जगह ही इस्तेमाल करना है। गलत उपयोग नहीं करना है। हम एथिक्स में पढ़ते हैं फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, इसमें नहीं करना है। Anyways, so these were the questions from insights, team insights, which we had to ask from Nilesh. So if you want, yeah, first we can. So if anybody has any question, you can ask directly or you can send the questions. So Nilesh, floor open है questions के लिए। कुछ हो तो पूछिए आप लोग। You feel free, either in English or Hindi, anything. No? Yeah. See the journey that you went through and the circumstances that you faced. But the one positive thing that I wanted to tell you were so close to your ethics that you never get it down.
And when we see the society is seeing that person who is carrying the ethics in his hand is like a fool. And I have observed. So because the life that we move on, and we are carrying our values and ethics and how the society is seeing the society is running in a different way. For example, if you are in a service, that you are saying that we are not going to favor the favoritism and nepotism, then people are expecting, your relatives are expecting something else. That ये person मेरे काम आएगा. और हम अपने ethics पे अगर carry on करके चलते हैं इस service में, तो लोग मतलब you stand like yourself alone in this journey. Whether you are in the preparation, whether you are in whatever journey. आप exam clear करने से पहले आपकी personality अलग frame होती है society में, और exam clear करने के बाद society का attitude change हो जाता है. But the same person are you. आप चेंज नहीं रहते. तो वो कौन सी फोर्स होती है जो आपको पुश अप करती है, और उस फोर्स को कैसे बिल्डअप किया जाए? क्योंकि मेरे अंदर भी यही प्रॉब्लम आती है कि मैं अपने आप को सोसाइटी के लिए चेंज कर लूँ, या मैं फिर सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए सोसाइटी ऐसा बन जाए. इसको कैसे फेस किया जा सकता है? आपका शुभ नाम क्या था? अखिल गुप्ता. अखिल. सो अखिल, एक चीज़ है, जैसे कभी आपके आसपास कोई माता या पिता बने हैं रिसेंटली, या आपके सामने पेरेंटहुड में कोई गया है? कभी आप देखेंगे ना, जब कोई शख्स होता है जो 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 कभी पिता नहीं बना है या माता नहीं बना है, वो किसी और का बच्चा हाथ में लेने से पहले ना उसको डर होता है कि मैं इसको गिरा दूंगा, ठीक है. और जब खुद का बच्चा होता है ना, तो वो उसको बहुत अच्छे से कैरी भी करता है. he or she carries that child very well, and that very responsibly, and with affection as well. Affection and with a feeling of ownership. Right. So when you come into the service now, you will feel that thing, that responsibility, that ownership, which will definitely pull you to stick to your ethics and stick to the ethics of the institution. It will not be like that कि कोई कह रहा है तो मैं उसकी बात सुन लूँ. No, it will not be like that. आप अभी सोच रहे हो कि मैं कैसे इसको फॉलो करूंगा, लेकिन जब आप उस फेज में आ जाओगे ना, then you will actually feel कि that I cannot feel like the same Akhil as I used to be. ये मैं अपने मतलब वो जो फोर्स की बात कर रहा हूँ ना, that force is responsibility. That is the actual thing that which will always keep you बिल्कुल. और वो फिर आफ्टर दैट इट विल बी यू दैट आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो. हर इंसान इंडिविजुअल हमेशा, जैसे मैंने बोला, मेरे से भी बहुत सारे लोग बहुत अनड्यू फेवर की बात करते हैं, कई बार बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं. मैंने उस चीज़ को मना करना है. दूसरी चीज़ कि आपकी पर्सनालिटी ऐसा होना चाहिए जो मैसेज अपने आप कन्वे कर दे कि दे डेयर नॉट टू आस्क यू फॉर एनी अनड्यू फेवर, ठीक है. और वो किसी से लड़ झगड़ के या किसी को एकदम वो ह्यूमन वाली वो लेकर के एंग्री नहीं दिखानी है. वो आपको मैसेज कन्वे कर देना, दे विल नो, वो समझ जाएंगे कि ये बंदा नहीं करेगा तो इसको बोलने से कोई फायदा नहीं. They will hesitate from the next time. बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम, और पहले ही टाइम से वो हेजिटेट करेंगे. Okay. So I hope I answered your question. Any next question? No question? पूछो. मुझे लगता है मैंने बहुत बोर कर दिया है. No, people are happy. I can see the smiling faces. Any questions from Bangalore? If people are watching the, yeah. सर एक्चुअली ना पेशेंस कैसे डेवलप करें? सर एक्चुअली ऐसा था कि कल ही मतलब सिलेक्शन हो जाता है. So the question is कि how to build up that patience? Those people who are listening online. ऐसा लगता है कि कल ही सिलेक्शन हो जाएगी. Yeah, please. And sir, one more thing, sir. सर एक और आता है कि एक्चुअली my aim is to go in politics. So कि जितना जल्दी आईएएस बनूं फिर छोड़ के फोकस नहीं होता. तो मतलब आप आईएएस को यूज करना चाहते हैं पॉलिटिकल अपने मोटिव्स को पूरा करने के लिए. लेटरल एंट्री. देखिए, उस पर तो मैं कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा.
सेकंड वाले पे। हाँ, सेकंड वाले पे वो देखिए आपका वो है लेकिन पहला वाला जब पेशेंस की बात है तो एक हर चीज़ का ना एक प्रोसेस होता है। आपका शुभ नाम दीपांशु। दीपांशु। दीपांशु देखिए हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है और हर चीज़ का एक ड्यू टाइम होता है। लेकिन कई बार होता है कि हम देखते हैं कि कोई कैंडिडेट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया एट अ वेरी यंग एज, और दूसरा कैंडिडेट है जो बहुत लेटर फेज में अपनी लाइफ के एंटर कर रहा है। तो आप वो देखेंगे ना कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में 22-23 साल में आ गया है, कोई दूसरा 30 साल में एंटर कर रहा है। आप उसके पीछे की जर्नी उसकी देखिए, उससे बात कीजिए। वो ऐसा नहीं है, वो हो सकता है कि उसने ना 17 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था उस जर्नी को, और जो दूसरा कैंडिडेट 23 साल की उम्र से शुरू कर रहा है। वो जो प्रोसेस है वो तो सबको ही उससे जाना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं प्यार के बारे में कि एक आग का दरिया है, डूब के जाना है, तो ये भी वही है। आपको उस दरिया को पार करना ही करना है। अब आप उसको किस स्टेज पे कैसे करेंगे ये आपको डिसाइड करना है। और जहाँ तक पेशेंस की बात है, पेशेंस डेवलप नहीं होता है, अपने आप को शांत करना पड़ता है। वो कहते हैं ना एकदम लंबी लंबी सांसें लेकर के, तो वो अपने हाँ तो वो अपनी लाइफ में आपको लेकर के आना। आप यू वोंट बिलीव मतलब इस फेज तक आप लोग पहुँचे कि नहीं, लेकिन कंटिन्यूअसली इंटरव्यू जा कर के अपना रिजल्ट देखना, ठीक है, और फिर देखना कि लिस्ट में नाम नहीं है, सॉरी कुड नॉट फाइंड एनी मैच, ठीक है, वो मैसेज वो पीडीएफ में नहीं है रोल नंबर, तो वो उसके बाद फिर दोबारा से, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं होता है। फाइन जब आप इंटरव्यू के बाद 15 दिन के बाद 1 महीना भी कहाँ होता है, 15 दिन के बाद फिर से प्रीलिम्स है आपका, तो टाइम नहीं होता है और वो पूरा एक अजीब टाइप की का टाइम होता है। लेकिन आप उस चीज़ से पता नहीं कितना विश्वास करेंगे मेरी बात का। मैं जब भी रिजल्ट मेरा नहीं होता था ना, मैंने 4-5 बार इंटरव्यू दिया है जी, तो उसमें 2 बार हुआ है, बाकी नहीं हुआ। तो जब भी रिजल्ट नहीं होता था ना, अगले 15 से 20 मिनट के अंदर मैं किसी रेस्टोरेंट पे बैठा होता था अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए, क्योंकि आपके पास ना सांस लेने की फुर्सत नहीं है। वो 5 मिनट में बैठता था, उसके बाद ठीक है ख़त्म हो गया। उसके बाद मम्मी पापा, मम्मी बेचारी कभी कभी परेशान होती थी, कभी रोती भी रहती थी कि फिर से नहीं हुआ इसका। मैं कई एक आध बार क्या हुआ कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है महेंद्र, तो मैं उसको भेजता था घर पे कि यार बता दे कि मेरा नहीं हुआ है फिर से। मतलब पहला न्यूज़ वो ब्रेक करे ताकि घर वाले शौक से, मैं अचानक से मैं चाहूँ तो वो शौक में ना, कुशन मिल जाए, हाँ कुशन मिल जाए उनको, तो वो चीज़ होती है। लेकिन वो जो पेशेंस है ना, वो धीरे धीरे आपका लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है। और वो आप सर्विस में आप ऐसे सोचो ना कि आप कर रहे हैं प्रिपेयर, सबका एक जो बाहर से जो आउटलुक होता है, जब तक सर्विस में नहीं आते तो आपका आउटलुक होता है कि मेरे को आईएएस बनना है। तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो आप अपनी रोल एंड ड्यूटीज़ को अगर आप देखेंगे तो एक डीएम है, एसडीएम है, आप बने हुए हैं। तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आप तो 1000 लोगों की भीड़ होगी, इसके सामने आप गोली चलाने का ऑर्डर दे देंगे जो आपको घेर के खड़े हुए हैं। तो ये तो आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट होना चाहिए ना कि आप उस भीड़ को कितनी पेशेंटली हैंडल कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से चेक कर रहे हैं, और पेशेंस भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो जो पूरी जर्नी में पेशेंस जो है वो चीज़ भी चेक हो जाती है ऑटोमेटिकली। जब वो बंदा वहाँ पहुँचता है, उतनी कामनेस, उतना पेशेंस उसके अंदर आ जाता है कि वो अब समझ रहे कि हाँ यहाँ तक आया है, इसका मतलब है इसके अंदर पेशेंस। तो वो चीज़ को आपको अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, और उसके लिए आप अपने तरीके आपको खुद डिवाइस करना पड़ेगा। अब मैं बोलूँगा कि आप मेडिटेशन करो, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ये तैयारी अपने आप में मेडिटेशन है, खुद में अपने आप में ध्यान है। तो उस चीज़ को आप अपने अंदर से डेवलप करके, जो भी तरीका हो, उस चीज़ को ले करके आइए, और वो चीज़ अगर ले आए तो दैट विल बी द की टू योर सक्सेस। and that we have to only find that what is our process.
और जस्ट एक लाइन ऐड करना चाहूंगा आपके आंसर में, इनके क्वेश्चन के लिए, कि ये प्रोसेस ही अपने आप में इतना ट्रांसफॉर्मिंग है दैट पेशेंस एंड अदर क्वालिटीज वो सब कुछ आ जाता है। और जो इंटरव्यू तक पहुंचा है ना, जब वो देख रहे हैं कि एक बार दो बार इंटरव्यू, वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि भाई आपके अंदर पेशेंस है। और इंटरव्यू भी छोड़िए, आप मीन्स भी बार बार दे रहे हो ना, तो आपको खुद ही वो अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद महसूस कर सकते हो। मैं 2 साल पहले या 5 साल पहले जो नीलेश था, आज की डेट में वो नीलेश नहीं हूँ, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। एंड तैयारी का बहुत बड़ा बिल्कुल सबसे बड़ा रोल, क्योंकि और सही बताऊं, जैसे तैयारी की बात है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, उसके बाद मैं कुछ देर के लिए खुश था, लेकिन उसके बाद फिर मैं बोला यार ये सब कुछ खत्म हो गया। वो हाँ वो चाय की जो चुस्की होती थी सुबह सुबह की, वो खत्म हो गई। ठीक है, वो गप्पे लड़ाना वो खत्म हो गया, शायद अभी भी नहीं मिलता, है। अब पता है, अब वो चाय वाले उनके पास जाता हूँ, शायद इकबाल भाई हैं वहाँ पे जीटी नगर पे, तो बोला अरे सर आइए सर चाय पी जाओ, मतलब वो फीलिंग ही खत्म हो गई है। जी खैर, मतलब काफी नॉस्टैल्जिक है। एक्चुअली कुछ और किसी को? या प्लीज। सर मेरा नाम राधावीर मौर्य है। सर एक सिंपल सा क्वेश्चन रहता है कि सर मान लीजिए कि अभी आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, थोड़ा सा तेज बोलेंगे, मुझे थोड़ा पास कटा कर, तो अभी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और अभी आप अच्छे फेज से गुजर रहे हैं, लेकिन बाई चांस मान लीजिए आप मन में फिर आता है कि कोई ऐसा मतलब जैसे कोविड-19 पेंडेमिक आ गया, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है, ऐसे में मतलब तैयारी कैसे मेंटेन करते हैं? मतलब घर से भी प्रेशर आता है, मतलब आपको ब्रेक लेना। देखिए, ये बहुत ही जेन्युइन आपका क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे मेरी अभी स्टेबिलिटी है फाइनेंशियल, लेकिन बहुत अनस्टेबिलिटी देखी मैंने पर्सनली, मैंने बहुत सारी अनस्टेबिलिटी देखी है फाइनेंशियली। और प्रिपरेशन के टाइम पे भी कई बार ऐसा होता था, मतलब मैं नौकरी करता था, मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, लेकिन कई बार ऐसा पता है क्या हुआ मेरे साथ, मतलब आपको ताज्जुब लगेगा सुन करके, कि कई बार क्या होता था कि मेट्रो से जा रहे हैं, मेट्रो में एंट्री कर गए हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए ना कार्ड में उतने पैसे नहीं और जेब में पैसे भी नहीं हैं। ऐसा भी मेरे साथ हुआ है, तो कार्ड को वापस उसको बेच करके और उसका रिफंड लिया और उसके बाद फिर बाहर निकले। अच्छा, तो ऐसा ही चीज़ें भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जॉब कर रहा था तो बहुत ऐशो आराम, ऐसा नहीं, क्योंकि घर की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे पेरेंट्स नोएडा में रहते थे, मैं यहाँ रहता था जीटीवी नगर, तो दोनों जगह का खर्च है। फिर जो उसके बाद पढ़ाई, मेरे को साल में 3 बार छुट्टियाँ लेनी पड़ती थी, तो उस समय भी क्या होता था कि जैसे लॉस ऑफ पे रहता था, तो उसके लिए भी मैंने एक क्वेश्चन बना करके रखना होता था कि उस समय जब सैलरी नहीं आएगी तो घर पे भी पैसे देने हैं और यहाँ का भी मैनेज करना है, तो वो सारी चीज़ें होती थी। तो ये जो अनस्टेबिलिटी है ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फिर से मैं उसी चीज़ पे वापस आऊँगा कि आपके अंदर कितना ज़्यादा दृढ़ निश्चय है, आप कितनी ज़्यादा आपकी वो चाहत है इस सपने को पूरा करने की, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको वही चीज़, आप हो सकता है खाने को आपको कुछ ना मिले, हो सकता है कि आपको बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, ठीक है, उस जहाँ पे आप रहना चाहते हैं, मान लीजिए 4000 का रेंट है, आप 2000 के रेंट में रहें, या फिर उसको वही कॉम्प्रोमाइज़, और जो भी चीज़ें आप जैसा भी नाम दें, जो भी एडजस्टमेंट आप उसको जैसा भी नाम दें, लेकिन अल्टीमेटली ना वो चीज़ आप कर लेंगे अगर आप, ये चीज़ आपके अंदर क्लियर है कि आपको ये चीज़ करनी ही है। और वो चीज़ को सस्टेन करने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ आपका जो मनोबल है, उसके अलावा कोई दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। आपके अगर फाइनेंशियली आपको कुछ करना है, तो वही जो हमने पहले चर्चा की, कुछ भी कर सकते, जो भी आप करना चाहें, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं या कहीं जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम, जो भी करना चाहें। इवन फॉर दैट मैटर अगर अच्छे फ्रेंड्स हैं तो वो भी बिल्कुल, मैंने भी बहुत उधार लिया है, वो सिलेक्शन के बाद चुकाया उन लोगों को। तो लेकिन वो बस बात वही है कि आपको अपने सपनों पे, अपने आप पे कितना भरोसा है,
वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, बिलीव मी। बाकी आप कुछ भी कहें वो सब कुछ फिर वही है कि बहाने की बात है, एक्सक्यूजेस की बात है। अगर आप एक्चुअली में करना चाहते हैं और आपको भरोसा है अपने सपनों पे, तो आप कर लेंगे और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन है जी, आज आगे। सर मेरा नाम विकास केसरी है। चूंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो ड्यूरेशन होता है 2.5 से 3 महीने का गैप होता है। इस टाइम अगर हम लोग टेस्ट ज्वाइन करते हैं प्रीलिम्स के बाद, तो ये ऐसे ऑप्शनल जीएस ये सारे चीज़ों का प्रेशर एक होता है। क्योंकि ड्यूरेशन 2.5 से 3 महीना होता है, तो हमारे सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि समय का सदुपयोग करना और इसके साथ साथ टेस्ट में परफॉर्मेंस भी करना, प्लस सिलेबस को रिवीजन भी करना। तो सर यहाँ पर मैं इस बार इस चीज़ को मैं फॉलो करके देखा। सर चैलेंज मुझे ये आ रहा है कि सारी चीज़ों को कंबाइन कैसे किया जाए कि ताकि मुझे मेंस में प्रॉब्लम ना हो प्रीलिम्स के बाद जो 2.5 से 3 महीने का। देखिए, मेंस प्रीलिम्स इंटरव्यू, मेरा ये मानना है कि ये एक ही जो ये 3 परीक्षाएं नहीं है अलग अलग, ये एक बड़े एग्जाम के 3 फेज हैं जो एक्चुअली में है, जो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि मैं सलाह दूंगा कि वो उसको जो 2.5 महीने का जो है ना फेज, उसको सिर्फ 2.5 महीने तक सीमित ना रखें। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या जो भी लिख रहे हैं, तो वो आपका थ्रू आउट पूरा स्टार्टिंग से मतलब जरूरी नहीं है कि आप आंसर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, वो लिखने का आपका कंटिन्यूएशन होना चाहिए वैसा कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपने आप को अभिव्यक्त करने में एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के आपको सोचना ना पड़े, क्योंकि वहाँ सोचने का समय नहीं होता है। तो वो आंसर राइटिंग सिर्फ ये आपको समझाती है कि वो 3 घंटे का जो पीरियड है उसमें आप अपने बेस्ट तरीके से लिख कैसे सकते हैं। बाकी जो सोचना पढ़ना है ना, वो एग्जाम के पहले हो चुका होता है। वहाँ पे आप जा करके, बिलीव मी, आपको रैपिड फायर राउंड होता है, वो बस जा करके क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लिखा, खत्म। और मेरे केस में क्वेश्चन सुना और आंसर बोला, खत्म। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है वहाँ पे। आप उस चीज़ को तो सोच नहीं पाएंगे। तो पहली चीज़ कि 2.5 महीना जो आप बोल रहे हैं ना, उस 2.5 महीने को एक्सटेंड कीजिए, पूरा जितना प्रिपरेशन है आपका उस चीज़ को। इनफैक्ट प्रीलिम्स से पहले बिल्कुल 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 आप प्रीलिम्स के पहले दिन तक आप आंसर कीजिए। क्या दिक्कत है उसमें? सिर्फ प्रीलिम्स में क्या होता है कि सब आपका थोड़ा अप्रोच चेंज हो जाता है जी। पढ़ना तो वही पॉलिटी है, वही ज्योग्राफी है, बस वहाँ पे थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ें, वो फैक्चुअल चीज़ें भी आपको तभी याद रहेंगी जब आप ओवरऑल आपका क्लियर रहेगा पिक्चर, पढ़े रहेंगे, तभी आप कनेक्ट कर सकेंगे। और देखिए प्रीलिम्स में क्या होता है, 100 क्वेश्चन में से ना 40 क्वेश्चन हर इंसान को आ रहे होते हैं जी। ठीक है। जो नहीं भी पढ़ के जाएगा ना, वो 35 क्वेश्चन तो कर ही लेगा जी। ठीक है। बाकी का जो खेल होता है ना, वो अगले 40 क्वेश्चन में होता है। वो अगले 40 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं कि भाई तुम्हारी जो ओवरऑल जो समझ है तुम्हारी वो कैसी है, और आप उसमें से क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके ऑप्शंस को सही क्वेश्चन टिक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। पर ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आप जितने भी सिलेक्टेड बंदे हैं, चाहे वो रैंक 1 ही क्यों ना हो, मैं दावे से कह सकता हूँ कि 99.9% यही स्ट्रैटेजी होती है 40 क्वेश्चन के बाद की। जो पहले राउंड में 40 क्वेश्चन टिक करते हैं, उसमें क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं कि किसी को कोई क्वेश्चन आता है, किसी को कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन वो 40 क्वेश्चन जो है ना, तो वो ओवरऑल आपकी पूरी तैयारी का जो निचोड़ होता है ना, उससे आप एलिमिनेट करके ही निकलते हैं ठीक है। तो वही चीज़ आपको एज देगी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अपनी जो पढ़ाई है या अपने प्रीलिम्स और मेंस का जो डिवीजन आपने बोला, वो डिवीजन को सिर्फ 2.5 महीने तक सीमित न रखिए। वो डिवीजन एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन अगर आपको उसको बनाना ही है तो वो पूरा ओवरऑल जो पूरा साइकिल है उसको एक यूनिट की तरह देखिए। अपने जो बीच में है प्रीलिम्स के 1-1.5 महीना पहले या 15 दिन 20 दिन, जैसा भी आपकी सहूलियत हो, उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपना अप्रोच चेंज कीजिए पढ़ने का। और बाकी तो वो 2.5 महीने का जो प्रेशर है ना, वो आपको महसूस नहीं होगा ठीक है। वो चीज़ ही मेरे ख्याल से, क्योंकि वो 2.5 महीने में तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा सिलेबस आप नए तरीके से पढ़ गए। हाँ एक्चुअली में तो आप ऑप्शनल का सिलेबस आप पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं 2.5 महीने में। The same we have been guiding that कि आपको
कुछ भी करो, इंटीग्रेटेड करो, इंटीग्रेटेड स्टडी, इंटीग्रेटेड पढ़ाई, कुछ भी, ठीक है। और बताइए, अगर मैं संतोषप्रद आपका आंसर नहीं दे पाए तो और कुछ आपको है तो पूरक क्वेश्चन कुछ है, पूरक प्रश्न मिल गया? चलिए, केसरी बैठे। जी, और कोई क्वेश्चन, कुछ भी, और एनी प्रोसेस और जर्नी, मोटिवेशन, एनी क्वेश्चन? बस, ठीक है नीलेश जी। So thank you for sharing this inspiring journey, and this is his story is classical example of we read in ethics perseverance, endurance. So this is a classic example, your story. And so friends, what message do we get from today's Ignite session? Maybe हर किसी को अपना अपना मैसेज मिलेगा. Right. So success will be yours only when you want it as badly as you want to breathe. Right. So that success can be anything in life. It is not just about clearing an exam. We will face several challenges and hurdles in life, which in beginning we feel are insurmountable, right? But as we saw from Nilesh's experience and journey, that if you really want to do anything in life, for that matter anything, then life is beyond excuses, right? So thank you Nilesh ji, and thank you everyone for joining us. Quickly we will have a glimpse from Nilesh's life through pictures. एक बार देखते हैं इनकी जर्नी, इनका लाइफ, ठीक है? हाँ नीलेश जी, चलिए, थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर कमिंग। अजय, ये लाइट ऑफ, लाइट ऑफ। So this is from his school days. I think this is from district Munger. Nilesh, आपने ग्रुप फोटोग्राफ शेयर किया है. So अभी हम आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएंगे, but yeah, you can see the teachers. They come from very humble background. और उन दिनों में, yeah, Pravesh next. As I told that he was awarded during his school days for his excellence, academic excellence by Honorable former President Dr. APJ Abdul Kalam. So this is Nilesh being awarded by Kalam sir. Then I think this is from his bank days, Indian Overseas Bank. Nilesh, I think ये आपका ग्राम मांडकोल है. Okay. So this was a camp where he visited during his bank days. This is again Indian Overseas Bank Hindi Divas Samaroh. So because of his Hindi medium and expertise in that, he was awarded something there, some certificate he is holding. Next, this is the day, I think, with his friends and family. His mom is there, his friends are there. I think this is the day when he got selected because this is his UPSC room. So it could be a day, Nilesh. I think ये वो दिन रहा होगा. एक पिक है. ये शायद किसी सेलिब्रेशन का है, हम वही सेलिब्रेशन मानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. This is I think any other official visit from his IRS life. Next. So नीलेश के लिए कोई चैलेंज नहीं है. इन्होंने मैराथन भी दौड़ी है, उनके एल्डर ब्रदर हैं जिनके बारे में इन्होंने मेंशन किया, एंड ये मैराथन भी दौड़ते हैं. This is they visited on international attachment. This is from WTO, I guess. WTO.
So can you must have seen all these in newspaper. The Hindu में देखा होगा ऐसे speakers बैठे रहते हैं. So they visited for international attachment. So this pic is from there. So this is it from his school days to till here. Nilesh as an IRS officer. So thank you. Thank you, Nilesh ji, and thanks for coming. Thanks for sharing the experiences. My pleasure. And आपने मुझे बुलाया, इस लायक समझा। और बाकी सभी के लिए अच्छा रहा. सबसे अच्छी बात रही कि दिल्ली ब्रांच पे हमने कुछ ऐसा सेशन पहली बार रखा. तो पूरी टीम की तरफ से, बैंगलोर की तरफ से, हमारे डायरेक्टर साहब की तरफ से, सभी की तरफ से आपको थैंक यू. एंड थैंक्स फॉर एवरीवन. थैंक्स टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. एंड दैट्स इट फॉर द सेशन.